Hello, everybody, and a warm welcome today. And this was a number that I enjoy myself. Dil hai mera ya hai yaadon ki almari, because it takes me to the old days where I used to enjoy the small things of life, and we have that almari where we keep all our memories, happy memories. So today's focus and today's session is all about creating memories, lifetime memories. We should prioritize these things. So, first of all, a warm welcome to each one of you, Karishma, Jaishri, Vandana, for joining in. I'm glad that you took out time from your busy schedule and you gave time for yourself to learn this important skill of learning the art of happiness, because in life sometimes we forget in the hustle and bustle of life कि हमें क्या चीज खुशियां देती है. So we will be exploring all the things related to creating memories, creating experiences. So फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग सब लोग अपना वीडियो चालू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. आई वॉन्ट यू टू डू वन एक्टिविटी विथ मी, दैट इज जस्ट टेक योर हैंड्स अप लाइक दिस, like this, like this, like this. Okay, and now pat yourself and say, I am awesome. I am awesome. Why we need to say that? Because हम लोग भूल जाते हैं the most important person in life is us, and we are awesome because we do so many things for others and we forget to appreciate ourselves. So today I want you to do this activity, that I am awesome and I am going to rock and learn all the skills and apply them in my life and be more happy. So guys, do you know that why the survey that has been done all over the world is that keep successful people, when they are on their death bed, जब वो उनके death bed पे होते हैं, and they are asked कि did you live your life happily, like that, then most of them, like almost 90% of them, they have regrets. उनको regret होता है कि we have always chased success, we are successful, we have what we desire, but in that journey we forgot to enjoy the precious moments of life. Suppose ki if they have a business meeting and suppose they have the same day their son or daughter's birthday, then for reaching their success wala goal, they prioritize that and they didn't go for the birthday party of their son or daughter. So what they missed, they missed to create that memory with their family. And I am a type of person that मेरे लिए ना 2-3 गोल मेरी लिस्ट में से कम हो जाए ना, आई एम ओके विद दैट, but I don't want to miss on creating this beautiful memories. That's why even I ask my husband, you work 24/7, आपको पूरे साल काम करना है, it's okay, just reserve 4 days, that is my birthday, his birthday, our anniversary and our daughter's birthday. Because these are the special days that we will remember for lifetime. हर एक, why don't we remember the daily things? Why don't we remember it? Because when these special days come, that time we have special emotions, and when we are emotionally connected to that event, at that time we are able to make it a lifetime memory. So this is just the 4 days I am saying, but आजकल like the world has become like dynamic, तो हम लोग अब क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं. सो सेलिब्रेशन की इनफ अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली इंडिया में तो और भी ज्यादा, बिकॉज वी हैव दिवाली, दशहरा, होली एंड सो मैनी राखी एंड सो मैनी अदर फेस्टिवल्स कि हम लोग सारे like बहुत सारे ऐसे मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं. सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि focus on
creating these memories and adjust your goals accordingly. हमेशा like एक स्पेशल अटेंशन देकर टाइम निकालो इन चीजों के लिए, बिकॉज ईयर आफ्टर ईयर ना लाइफ कैसे स्लिप होती जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा. यू मस्ट हैव रियलाइज कि जब तक लाइक कॉलेज था तब तक यू मस्ट हैव लाइक एंजॉयड फ्रीली. जैसे ही उसके बाद जॉब लगी या हमारी मैरिज हो गई या बच्चे हो गए, हम लोग टोटली भूल गए. we started running and we forgot that what used to give us joy is missing now from our life. हाँ, कभी कभी हम लोग कुछ कुछ चीजें कर लेते हैं, that is like करने के लिए कर लेते हैं, but do we like actually like put that conscious efforts to make it a priority? कि otherwise this year after year, अभी 2022 खत्म हो गया, ऐसे ना ब्लिंक कर दे 2023 भी खत्म हो जाएगा. नाउ आई वांट यू टू लाइक जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल कि 2022 के स्टार्टिंग से लेकर अब तक हाउ मेनी टाइम्स यू हैव क्रिएटेड a special memory for which you feel happy कि that is an awesome memory to create for lifetime. So just try to recall जनवरी में क्या हुआ था, फरवरी में क्या हुआ था, मार्च में क्या हुआ था. कुछ याद आ रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, and here we are in December. Now open your eyes and tell me कितने incidences आपको याद आए. You can type in the chat box or you can unmute and say like I want that average. मुझे सिर्फ average चाहिए. Like पूरे 12 महीने में एक एक था, या फिर 3-4 याद आए या 5-6 याद आए. Okay, Karishma is saying 3 or 4. How about Jayashree and Vandana? 5 to 6. Good. Jayashree has a little big number. How about Vandana? जयश्री के आजकल ज्यादा बढ़ रही है ना. See, what you focus on grows. So Jayashree is focusing. Okay, Yes. so this is the average. And do you think this is the good number? 3, 4, 5, 6. एक साल के लिए एक अच्छा नंबर है. Do you think it will make you happy? इतने एक साल में इतनी सी memories, is it enough? Should be at least 12 ना. हाँ, कम से कम 12 तो होनी चाहिए. मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, बट कम से कम 12 तो होनी चाहिए, राइट? एवरी मंथ समथिंग तो कुछ तो अलग होना चाहिए जो हमें लाइक खुशी दे, जो हमें लाइक एक्चुअली खुशी क्यों जरूरी होती है बेसिकली, यू नो, बिकॉज इट गिव्स अस द एनर्जी. यस, मुश्किल से 5-6 याद आए. वाई? क्योंकि वो सारी जगह पे इमोशंस ही नहीं अटैच थे. जहां पे इमोशंस अटैच होते हैं ना, वो चीज हम कभी नहीं भूलते हैं. लाइक अगर आप लोग लोगे अभी इन 3 दिन की जर्नी में ही, विच इज द बेस्ट पार्ट दैट यू रिमेम्बर अभी तक का? ट्रेन वाला. यस. व्हाई? वहां पे इमोशंस अटैच थे, वहां पे एक्सपीरियंसेस अटैच थे, राइट? इट ब्रॉट अस समथिंग इनसाइड अस
that joy that we miss in our day-to-day life. So that is what कि है ना, ये वाला नंबर इनफ नहीं है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर कॉन्शियसली टू इंक्रीज इट. एंड ये इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं, बिकॉज everybody in life is chasing and chasing, and we forget to stop, pause and reflect कि यार हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही है. Why are we not happy? हम गोल पे गोल अचीव करते जाते हैं, गोल अचीव करने के बाद खुशी मिल जाती है, उसके बाद फिर वापस क्यों भागने लग जाते हैं. अगर ऐसा होता कि सिर्फ पैसा कमाने से या सिर्फ फेम होने की वजह से हम लोग को खुशी मिलती, तो all the successful people and all the rich people of the world must be happy ना. But the numbers doesn't say so. Numbers जो रिसर्च से पता चले हैं वो बताते हैं कि all the rich men, all the successful people are not happy. In fact, very few percentage of people are happy. So then at that time ask a question, then what is like, देखो हमारी दुनिया ना बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड फेमस पीपल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. The number of millionaires that we had in past compared to today was less. Now we have more, but the scientifically number of happy people जो past में थे और जो आज है, that has reduced. बढ़ने चाहिए थे ना. अगर सक्सेस बढ़ी है, क्या बोलते हैं, पैसे वाले लोग बड़े हैं, अगर वो सारे रेशियो ही अगर अपना ये मेन होता है हैप्पीनेस के लिए, तो ये सारे लोग बढ़ने चाहिए थे. ये कम क्यों हो गए? व्हाई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, दिस हैज लाइक बिकम अ कॉमन वर्ड नाउअडेज. एनी आंसर? कभी सोचा है? Because we have started living robotic life. Yeah, Vandana, you'd like to say something? करेक्ट. ये ऐसा हो गया है. या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अभी हम बस ऐसे होता है कि गोल अचीव करते हैं, बट हम वो उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. Right. जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट ईयर लाइक मैं बहुत दिन से प्रमोशन के लिए वेट कर रही थी, प्रमोट हूँ. फिर जब मैं हो गई तो ठीक है, हो गई. मतलब मुझे उसका बहुत पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत ऐसे होता है ना कि बहुत ये आई अचीव डेट, तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं हुआ वो चीज. बट अभी मुड़ के देखती हूँ तो मतलब लगता है, मतलब पता नहीं, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ही नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई. या वो हैप्पीनेस नहीं आई जिसके लिए वो इतने मतलब 2 साल से या 1.5 साल से या जो भी मैं टाइम से वेट कर रही थी. ये तो ये तो बहुत बड़ा एक वो हो गया अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की चीज कि यार जो प्रमोशन वाला गोल आपने सेट किया उस पे भी आप खुश नहीं हुए. देन आई वंडर कि वो जो 2 साल वाला जो पीरियड बोल रहे हो, उसमें जो छोटी छोटी चीजें आई होगी वो आपने सेलिब्रेट की क्या? डिड यू सेलिब्रेट दोज थिंग्स? नहीं, वो भी नहीं करी. सो हियर इज माय नहीं, क्योंकि पॉइंट. एक टाइम पे ऐसे भी था हाँ, मतलब एक टाइम पे ऐसे था कि हर एक क्वार्टर में मुझे मिले थे. बट ठीक है, मिल गया, कोई बात नहीं. ठीक है, इस अवार्ड का मैं क्या करूं, ऐसा वाला टाइप था. आई डोंट नो व्हाई, बट था वैसा. यस, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन टू सेलिब्रेट, टू तो आई डोंट एंजॉय. नो. और ये हमें कॉन्शियसली करना होगा. हम्म. अदरवाइज व्हेन जो ये मैंने बोला कि सर्वे से ये पता है दैट बेट पे पीपल हैव रिग्रेट्स. आई विल जस्ट लिस्ट, थोड़ा सा मैं बताती हूँ जो मैंने आज निकाला है कि क्या क्या रिग्रेट होते हैं उन लोगों को.
फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ रिग्रेट कि we didn't spend enough time with our family. दूसरा होता है we didn't travel all the places we wanted to. तीसरा होता है we kept comparing ourselves with others rather than feeling satisfied with what we had. पता हाँ होता है कि we should have taken. आई थिंक मेरे केस में शायद, Yeah, tell me. सॉरी सॉरी, हाँ शायद मेरे केस में ऐसे ही था कि मुझे लगा अरे मेरे उस कलीग को वो उसको पहले प्रमोशन मिल गया, मुझे उस टाइम पे मिलना चाहिए था, या समथिंग लाइक दैट। शायद इसीलिए फिर मैं खुश नहीं हुई, क्योंकि आई कंपेयर्ड माई सेल्फ विथ अदर्स। हाँ, सो बेसिकली ये हमारे लिए ह्यूमन मेंटालिटी होती है कंपेयर करना, बट वी शुड बी लाइक वी शुड थिंक कि हम लोगों को किससे कंपेयर करना चाहिए. वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवरसेल्फ बिकॉज हर एक इंसान की सिचुएशन अलग होती है. इफ दे हैव सक्सीडेड फास्टर तो देयर एनवायरमेंट इज डिफरेंट. एंड ये बिल्कुल भी ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि जिसने उस चीज में सक्सेस पाई है वो अदर एरियाज ऑफ लाइफ में भी सक्सेसफुल हुआ होगा. मे बी दे हैव मिस्ड ऑन द रिलेशनशिप, मे बी दे हैव मिस्ड ऑन देयर जॉयज, मे बी दे हैव मिस्ड ऑन देयर क्या बोलते हैं कोई भी और चीज ले लो जो अपनी व्हील ऑफ लाइफ का रहता है. तो अगर आपने वहां पे बैलेंस किया है, हेल्थ में अगर अच्छा किया है कि आप बीमार नहीं पड़े हो, आपके पास एक सफिशिएंट मेमोरीज है जो आपने अपने फैमिली के साथ क्रिएट की है, तो पूरा ये सारा मिला के एवरेज हमें निकालना है कि दैट इज व्हाट इज सक्सेस, नॉट जस्ट द प्रमोशन थिंग. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. Karishma is writing no pause, no reflection. Yes, because we forget. हमें लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं है यार. आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है. मैं खुश रह सकती हूँ, मुझे पता है ये करने से मुझे खुशी होगी, बट वी डोंट हैव टाइम. एंड व्हाई? वो हम कभी नहीं पूछते अपने आप से कि हमारे पास क्यों टाइम नहीं है. बिकॉज वी डोंट प्रायोरिटाइज अवर सेल्फ, वी डोंट प्रायोरिटाइज अवर हैप्पीनेस. फिर और क्या रिग्रेट्स होते हैं लोगों के कि दे डिडंट टेक इनफ रिस्क एंड दे डिडंट डू व्हाट दे वांटेड टू डू. बकेट लिस्ट होता है राइट हम लोगों का कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, पर हम लोग वो क्या करते हैं, उसको डिले कर देते हैं. यार अभी तो टाइम नहीं है. या तो हम लोग उसको वीक से डिले करते हैं, या तो मंथ से अगले महीने चले जाएंगे, छुट्टियों में चले जाएंगे, अगले साल चले जाएंगे, इस बार पैसे नहीं है या फिर इस बार कुछ और सिचुएशन आ गई है. तो लाइक दैट हम लोग ना हम लोग प्रायोरिटाइज ही नहीं करते. एंड सपोज कि हमको एक नई ड्रेस लेनी है, ठीक है. आई एम टेकिंग वन स्मॉल एग्जाम्पल कि हम लोग को एक ड्रेस बहुत पसंद आई है, वी परचेज इट, ओके, ठीक है. बट राइट नाउ देयर इज नो स्पेशल ओकेजन. आपको क्योंकि वो पसंद आई आपने खरीद ली, यू आर हैप्पी दैट यू बॉट इट, ठीक है. बट यू विल बी वेटिंग फॉर सम स्पेशल ओकेजन टू वेयर इट. इज इट रिक्वायर्ड? हमारे पास खुशी है, हमारे कबर्ड में पड़ी हुई है खुशी, बट वी आर वेटिंग. अरे यार मेरा बर्थडे आएगा या मेरी बेटी का बर्थडे आएगा या हम कहीं बाहर जाएंगे या कोई हमें बुलाएगा, तब मैं उसे पहनूंगी, तब मैं स्पेशल फील करूंगी उसे पहन के. व्हाई? आज क्यों नहीं पहन सकते हो? आज खरीदिए, आज पहनो, आज उसे पहन के नाचो गाओ, जो करना है वो करो, एंड कीप इट इन द कबर्ड आफ्टर दैट. फिर पहन लो ना, वापस पहन लो, वो कहीं भाग तो नहीं रही है. पर आज क्यों नहीं हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सो दिस इज वन एग्जाम्पल. ऐसे हम बहुत सारी और चीजों के लिए करते हैं जहां पे वी डिले अवर हैप्पीनेस, थिंकिंग कि कोई एक राइट टाइम आएगा या फिर कोई एक राइट सिचुएशन आएगी व्हेन वी विल एंजॉय दैट थिंग, जो कभी नहीं आती है. बिलीव मी, कभी नहीं आती है.
एंड द टाइम पासेस, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, एंड जब हम लोग डेथ बेड पे पड़े होते हैं तब लगता है कि यार काश काश मैंने वो कर लिया होता जब मेरे पास एनर्जी थी, स्ट्रेंथ थी, स्किल्स थी, पैसे थे, सब कुछ था. सो वी शुड लाइक थिंक कॉन्शियसली कि यार मैं तो बोलती हूँ है ना, हर महीने पहले तो एक जॉय लिस्ट बनाओ. इस महीने में मुझे क्या क्या करना है जो नॉन नेगोशिएबल रखूं, कि ये मैं चाहे कितना भी बिजी हूं, चाहे मेरे कितने भी गोल्स हो, ये वाला एक परसेंटेज है मेरा, लाइक 10% टाइम आई एम गोइंग टू गिव इट टू माई हैप्पीनेस. ये वाली चीज मैं करूंगी. एंड देन मंथ के बाद उसको वापस से वीक में डिवाइड करो. दिस वीक आई एम गोइंग टू डू दिस. एंड उसके बाद हर दिन सुबह उठ के एक तो कर ही सकते हो, 5 मिनट वाली कर लो, 10 मिनट वाली कर लो. Can't we take out 5 or 10 minutes for ourselves every day to do the thing that we love, we enjoy? कर सकते हैं, राइट? लेकिन करते नहीं है. क्यों नहीं करते हैं? हमें लगता है यार अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, कहाँ भागे जा रही है. आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस वीक नहीं अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले सैटरडे संडे का वेट कर लेंगे. बट दैट इज हाउ वी लाइक डिले अवर हैप्पीनेस. वो नहीं करना है हमें, बिकॉज नाउ यू नो कि इतने कम नंबर्स जो आए हैं ना, उसको हमें बढ़ाना है. एंड नाउ आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला कि उसे कैसे बढ़ाना है. बाय कॉन्शियसली मेकिंग योर जॉय लिस्ट एंड फॉलोइंग इट week by week, day by day, and prioritizing yourself and making it a non-negotiable. And sometimes na you should not listen to your दिमाग, हार्ट फॉलो कर लेना चाहिए. कितना आप दिमाग की सुनोगे? चलो आपने ना 100 में से आप 100 बार अगर अपने दिमाग की सुनते हो ना, तो 10 times now start listening to your heart and see the magic. 10 बार भी अगर आपने अपने दिल की सुन ली ना, तो बिलीव मी, उससे जो एनर्जी आपको खुद मिलेगी ना, वो खुशी जो पाकर जो एनर्जी मिलेगी ना, whatever फील्ड यू आर, जिस भी लाइफ के जिस भी फील्ड में आपको स्टक फील हो रहा है ना, वहां पे यू विल फील कि वहां पे यू हैव स्टार्टेड फोकसिंग मोर, यू हैव स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग मोर, यू हैव बेटर एनर्जी, बिकॉज you are happy, you are fulfilled from inside, you are satisfied from inside कि I did some things for myself. तो that is what I am saying कि इसको like conscious effort बना लो और उसका रिफ्लेक्शन आपकी सारी जगह पे होगा. यही उल्टा भी होता है. when we don't make ourselves priority, हम लोग को बहुत जल्दी like गुस्सा आने लग जाता है. very soon we start losing our patience. हम लोग को ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं. there is nothing in my life. मैं like कर क्या रही हूँ यहाँ पे? what I am doing? nobody notices me, nobody appreciates me, nobody has time for me. और बस मैं ही करे जा रही हूँ, मैं ही करे जा रही हूँ. why we want to expect from others जो चीज हम खुद कर सकते हैं हमारे लिए. सो ऑलवेज आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है और दोज हु विल बी वॉचिंग द रिकॉर्डिंग, कि मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू मेक हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी. ओके. एंड जब भी आप लोगों को लगे कि अभी मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि लाइफ रोबोटिक हो रही है, उसी दिन पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, स्टार्ट राइटिंग कि क्या चीजें मुझे खुशी देती है. एंड एक
जॉय लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, आपके कबर्ड में हो, आपकी डायरी में हो, खोलो उसे, देखो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज एक की जगह ना 2 चीजें उठाऊंगी मैं अपनी जॉय लिस्ट में से, एंड आज मैं 2 चीजें करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई मूड। मुझे उस वाले स्टेट में नहीं रहना है, सैड वाले स्टेट में, डिप्रेशन वाले स्टेट में, स्ट्रेस वाले स्टेट में। वाई? बिकॉज ये सारी चीजें हमारे वाइब्स भी लो कर देती है, एंड व्हेन वी हैव अवर वाइब्स ऑन अ लोअर लेवल, बाकी सारी चीजें उस पर अफेक्ट होती है। इट इज अ डोमिनो इफेक्ट। आपकी हेल्थ पे तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके करियर पे पड़ेगा, आपके बिजनेस पे पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप में पड़ेगा। एंड वाई यू वांट टू मेक दैट नेगेटिव इफेक्ट, जबकि आपके हाथ में है उन सारी चीजों को पॉजिटिव में टर्न करने के लिए। वंदना इज सेइंग वाओ बलवान, जयश्री इज सेइंग सुपर आइडिया। यस, सो that is what is my request today कि make yourself a priority। जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करोगे, यू विल नोटिस द शिफ्ट कि आप लोगों ने ब्लेम करना छोड़ दिया है, कंप्लेन करना छोड़ दिया है। यू आर मोर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो सारी चीजें आपने अपने आप को देना खुद से शुरू कर दी है। I'll take one example. Like मुझे याद है वो इसलिए because when we went to the revision वाली चीज, तो I remembered कि मुझे I made it a non-negotiable कि मुझे मंडे को, every Monday I have to like upload a video of the interviews that I conduct. That day, that time नवरात्रि was going on, ठीक है, and उस टाइम पे वही नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए देयर वर लाइक मेरे सारे चीजें ऊपर नीचे हो गई थी उस वीक में। तो द इंटरव्यू गॉट, मतलब जो इंटरव्यू शेड्यूल किया था वो जो पर्सन था, वो इंटरव्यू उस दिन हुआ नहीं एंड इट गॉट डिलेड। तो वो एकदम लास्ट मोमेंट पे हुआ, उसकी वजह से मेरी एडिटिंग वगैरह सब रुक गई थी। बट फाइनली आई डिसाइडेड ठीक है, मैं एक दिन में ही जैसे भी होगा आई विल डू इट बिकॉज आई मेड इट अ नॉन नेगोशिएबल। एंड उस दिन मेरा शाम तक एडिटिंग खत्म नहीं हुआ। आई वॉज इन द मिडल ऑफ एडिटिंग एंड नीचे बिल्डिंग में म्यूजिक चालू हो गया नवरात्रि का। एंड आई एम लाइक ब्रॉट अप इन गुजरात, तो मेरा नवरात्रि के गरबे से लेकर थोड़ा सा अटैचमेंट है। एंड दैट म्यूजिक इज लाइक पुलिंग मी टूवर्ड्स इट, एंड यहाँ पे मेरा माइंड बोल रहा है खत्म करना है, इट इज अ नॉन नेगोशिएबल, पहले इसे खत्म करने के बाद ही तुझे जाना है। एंड हार्ट बोल रहा है यार ये तो चलते रहेगा, जा नीचे जाके गरबे खेल, गो एंड एंजॉय दोज थिंग्स जो तुझे खुशी देती है। नाउ इट इज अ स्ट्रगल बिटवीन माई माइंड एंड माई हार्ट, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड हैव आई चोजन इफ यू नो मी? Type in the chat box. One, if I have chosen my Garba. heart. Okay, Karishma, Jayashri are saying that मैंने Garba. heart चुना, गरबा चुना. Exactly, that is what I did. And I felt so happy doing that. मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ, वो एक थोड़ा सा वो लगा मुझे कि यार मेरा एक नॉन नेगोशिएबल आज हिल गया, बट द सेटिस्फैक्शन दैट आई फेल्ट, वो मेरे लिए मेमोरी बन गया। उस दिन का गरबा मेरे लिए मेमोरी बन गया कि यार मैंने मेरी दिल की सुनी, मैं जाकर खेली और खूब अच्छे से खेली। एंड वो चीज मैंने दूसरे दिन की। ठीक है, वी आर नॉट मशीन्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी परफेक्ट एवरी टाइम। समटाइम्स इट्स ओके टू फॉलो योर हार्ट, टू सेटिस्फाई योर सोल। थिंग्स हमारे हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है।
So sometimes we should embrace imperfections also. So like this is the funda of my life that I feel it has kept me, even in my lowest times, it has helped me to come up and bounce back. Karishma is saying there are times when you love doing something, but since you are doing it every day, we stop noticing that it is our joy. What would you say about that? Yes. Example, can you put the example what it is, that one thing? एक चीज बताओ, मैं I'll explain. Like I love, जैसे I'll sit in the stairs, I'll enjoy the greenery outside, I love, sipping my tea sitting there. मैं हर रोज कर रही हूँ, but when you asked me about the joys of my life, I did not count that in my joy list कि मेरे को उससे खुशी मिली, तो that I did all 365 days, and I just did not count it जब आपने पूछा कि how many times were you happy. Yes. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुशी को भी रोबोटिक बना दिया. So वहां पे ना आपने उसमें माइंडफुली ये नहीं डाला कि लाइक वाओ आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास ये टाइम है जहाँ पे मैं ये ग्रीनरी एंजॉय कर रही हूँ, और आई हैव द टाइम टू सिप इट पेशेंटली, एंजॉय इट using all your 5 senses. Or maybe I just क्या था कि जब हम when I was enjoying doing that, तब तो I enjoyed it, but I forgot about it later कि हाँ, this is something I enjoy. It's just becomes for granted, जैसे कहते हैं ना, बच्चों के साथ हमारे को cuddling करना बड़ा पसंद होता है, and then when you're doing it every day, तो यू जस्ट फॉरगेट कि हाँ, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, हाँ ये तो करना ही है, उसके बाद की बात. और या फिर हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस बढ़ा दिया एट द टाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग कि व्हाट गेव मी हैप्पीनेस. Yes. So because you reflected. So the answers lies within us कि why we are not able to enjoy. हमको हमारी खुशियों को रोबोटिक नहीं बनाना है. Make a conscious effort. Okay. And इसका एक और एक solution you can take it out, like write every day 3 joy list. पॉइंट कि आप हर रोज 3 चीजें लिखो. जैसे आप ग्रेटिट्यूड, कल मैंने बताया था कि ग्रेटिट्यूड लिखो. नाउ स्टार्ट राइटिंग द जॉय लिस्ट. उससे हमें पता चलेगा कि यार ये 3 चीजें मैंने खुद के लिए की है जिसने मुझे खुशी दी है. जब आप लिखो, नहीं, बट वो ये ना कि एंड ऑफ द ईयर में जब आप फिर से मुझसे अगले साल पूछोगे ना व्हाट वर द थिंग्स दैट यू एंजॉयड थ्रू आउट द ईयर, आई विल फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स. अरे लेकिन लिखी होगी ना. नहीं भूलोगे. व्हेन यू राइट ना, बहुत जल्दी नहीं भूलते हो, बिकॉज देयर वन मोर सेंसेस इन्वॉल्व्ड, आवर टच. ओके. एंड भूल भी गए तो कॉपी तो है आपके पास जहाँ पे लिखा है. डोंट चेक इट आउट. निकालो वहां से. राइट. ठीक है. एंड व्हेन वी राइट ना, बिलीव मी, हम लोग जब उसे सिर्फ दिमाग में करते हैं ना चीज को, देयर आर चांसेस दैट वी विल फॉरगेट. व्हेन वी राइट इट ऑन पेपर ना, वो फीलिंग्स पेपर पे आती है, तो द चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग रिड्यूसेस. ऐसा नहीं है नहीं भूलेंगे, पर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वहां पे हमारे एक और एक सेंस इन्वॉल्व होता है. एंड राइटिंग हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर ब्रेन. तो इसीलिए वो ग्राफोलॉजी भी होती है कि आवर हैंड राइटिंग इज लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी. क्यों होती है वो? बिकॉज वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है. हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है वो हमारी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है, एंड जो हमारी राइटिंग में दिखता है वही हमारे दिमाग में चल रहा होता है. और वो एक साइंस है. ग्राफोलॉजी इज अ साइंस जिसमें हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं.
So guys, I hope you got ki why we should not delay our happiness, why should we make the conscious efforts, क्योंकि year after year things will move on और हमें ऐसी पांच छह चीजों के साथ नहीं जाना है. हमारे पास मस्त वाली मेमोरीज होनी चाहिए, मस्त वाली जॉय लिस्ट होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होने चाहिए कि जो हम जब हमारे डेथ बेड पे हो ना तो बोलना चाहिए वाह यार मैंने तो एकदम मस्त वाली लाइफ जी, ऐसा मैंने हर वो चीज करी जो मुझे करनी थी क्योंकि मैंने मेरी दिल की सुनी. Karishma saying now I say we should have at least 365 time a year that we enjoyed. Absolutely. तो next year जब हम लोग मिलेंगे ना करिश्मा, आप बताना ये नंबर, इससे कम नंबर नहीं आना चाहिए. श्योर पक्का. So but you came to know कि हमारा परसेंटेज कितना कम है. 3, 6, that is such a less percentage. 365 का 3 और 6 कितना परसेंट होता है? I don't know. Although I am a software engineer, I don't know that calculation. If anybody is a maths expert, but at least I can say कि 365 का 36 is 10%, तो कुछ तो भी like 1% के आसपास कुछ होगा. And 1%, 1% खुशी हो हमारी लाइफ में, डू यू वांट दैट? अच्छा अंशिका ने 0.1 कैलकुलेट करके बताया. अच्छा एक भी नहीं, 0.1. ओह गॉड. सो दिस इज अ वेरी वेरी लाइक क्या बोलूं अब, 0.1% के लिए हम लोग खुश होंगे पूरे साल में, तो पूरी लाइफ खत्म होते होते 1 पे पहुंच जाए तो बहुत है. हर एक साल 0.1 करके नहीं. आई वॉन्ट कि क्योंकि आज आपने ये मेरा सेशन अटेंड किया है, 0.1 तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी. वो भी 100 years जिएंगे तब. राइट. सो द नंबर शुड इंक्रीज एंड फॉर दैट आई हैव गिवन यू द टिप्स कि कैसे क्या करना है. ये छोटे छोटे दिए हैं. इफ यू स्टे विद मी I have a lot. And you know guys, this all have like last 2 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे सेशंस अटेंड किए हैं जहां पे मैंने सीखा है. Otherwise also from childhood this has been inculcated by my parents inside me कि खुशी पाने के लिए आपके पास सारी चीजें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. You can enjoy with whatever you have. I have like we had very rough days in the initial period when I was like very small, first, second, third, fourth. My dad's factory shut down. तो पैसे wise बहुत like it was a problem. हम लोगों को याद है we used to stand in the queue where we used to get 1 rupee का 1 tiffin. ऐसी सिचुएशन में भी आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे चाइल्डहुड में कोई भी सैड मेमोरी है मेरे पास. एंड आई जस्ट कांट बिलीव इट. व्हेन टुडे आई हैव द इंटेलिजेंस टू एनालाइज, आई जस्ट कांट बिलीव इट. कैसे हुआ ऐसा जब इतनी कम हमारे पास लाइक फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम था. हाउ कम आई डोंट हैव द बैड मेमोरीज ऑफ दोज डेज? Why don't I feel that pain जब इतना कम था? आज की तारीख में इतना सब होके भी many times I feel that I don't have anything because it was the upbringing. जो कंडीशनिंग मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे दी थी. And I just remember the beautiful memories जहाँ पे हम बैठ के कैरम खेल रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग बैठ के कार्ड्स खेल रहे होंगे,
जहाँ पे हम लोग लाइक फ्रेंड्स के साथ जो हम लोग वो बॉल से खेलते हैं वो सब खेल रहे होंगे. And we were actually everybody in we used to stay in a colony, so everybody had the same situation. सबके parents की वही हालत. So we had that thing कि हम एक दूसरे को समझते भी थे. पर हमारी खुशियां कभी भी उन पैसों पे नहीं डिपेंडेंट होती थी यार. खेलने के लिए क्या चाहिए था? एक बॉल चाहिए था, जो भी हम लोग सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके वो बॉल ले आते थे. एंड वो जो 7 वो छोटे छोटे से पत्थर होते थे जिसको एक के ऊपर एक रख सकते हैं. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट, पर हम गुजराती में उसे सतोड़ियो बोलते थे. 7 को, अच्छा सबके लैंग्वेज में अलग है, बट यू गॉट द गेम राइट. उसे खेलने के लिए बस एक बॉल चाहिए होती थी. फिर बाद में वो जो सर्कल्स बना के उसके अंदर हम ऐसे क्या बोलते हैं, सर्कल को जंप करके करते हैं ना, पिट्ठू. हाँ राइट. तो वो तो ऐसे सारे छोटे छोटे चीजों की मेमोरीज है, चाहे वो घर पे हो चाहे वो बाहर हो. सो इट्स ऑल अबाउट recognizing all the blessings that we have in our life and create more memories and experiences with them rather than just chasing and chasing. So this is all about today's session. I hope you enjoyed and got the point कि हमें हमारा नंबर इंक्रीज करना है. किसका? पैसे का या फिर हैप्पीनेस का? विच इज द इम्पोर्टेंट? टाइप और अनम्यूटन से किसका परसेंटेज इंक्रीज करना है? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का. हैप्पीनेस का, क्योंकि वो बहुत 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 कम है यार. 0.1 राइट. पैसे का तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम लोग खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका क्या बोलते हैं वो प्रोपोर्शनल वैसा होता ही है. इफ यू आर हैप्पी तो परसेंटेज उसका तो बढ़ना ही है. साइंटिफिकली भी देखा जाए तो उसका बढ़ना ही है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं वी डू थिंग्स आउट ऑफ लव. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. होप यू एंजॉयड. एंड 3 दिन की जर्नी हमारी यहाँ पे खत्म होती है, बट आई डोंट वांट यू टू एंड दिस जर्नी फर्दर. अगर आपको मेरे साथ आगे जुड़े रहना है तो there will be many free as well as paid things from my side. If you enjoyed, if you realized the importance of happiness, do stay with me. Don't leave that WhatsApp group and follow me on Instagram. Follow in my YouTube. My YouTube channel has actually that also has a purpose. जहाँ पे हम लोग like all the women around us, when we feel stuck, when we see other women who were stuck and how they created their success, facing all their struggles, where they share their stories, jahan pe it is not a bookish knowledge, but it is their experiences that they share. तो तब हमें इंस्पिरेशन मिलता है अंदर से कि इफ दे कैन डू इट, जो हमारे जैसे हैं, तो वी कैन टू. तो जस्ट सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड वॉच इट्स इंस्पिरेशनल स्टोरीज. वहां पे अभी तक 31 स्टोरीज जा चुकी है गाइस, सो यू कैन चेक दैट आउट. एंड आई एम ऑफरिंग one-on-one call, free one-on-one clarity call with me. So you have any of the things that you want to discuss with me, come on the clarity call with me. I will be happy to help you with whatever knowledge that I have gained in this years, whatever experiences that I have. I'll try my best to help you and get out of whatever you are struggling. So it's a request to you guys. Do follow me on Instagram. I will be sharing a lot of tips and tricks there also, as well as on happiness. And I am planning to do even Insta lives with other guests to discuss more about all these beautiful things. So thank you so much for being there with me all these days and supporting me. It means a lot to me, because this is like my foundation journey
जहाँ पे I have started exploring this coaching thing, and I'm glad that you all are a part of it. And this are the special memories. ये हमेशा memories रहेगी, मेरा first workshop, मेरा first challenge. And ये मैं रखती हूँ purposely to increase my percentage. That's why I am a lover of collecting in the form of photos, pictures. तो इसलिए मैं हर चीज का, अगर ऐसे वर्चुअली कुछ हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ, अगर कुछ ऑफलाइन हो रहा है तो आई क्लिक पिक्चर्स टू कैप्चर दोज मेमोरीज. So thank you guys, it was awesome talking with you. You have been so interactive, you have shared your heart out, and I am blessed to have you all today. And do continue the journey. See you all. Bye for now. Thank you so much.